Hello, good morning, students. I am Rajendra Simori, your maths teacher. Today is your lecture number 10, and this is your day 10. So, in this lecture in class 7th, independent practice we have to doing for the practice question number 5. So yesterday we also discussed some of the portions related with the practice questions, but today we have to discuss about the practice question number 5. So this is a practice point of view. So whatever we discuss today, each and every questions you have to also write in your practice, and whatever the practice you have to perform in your book, that you have to send as a homework. समझ में आ गया? आज जो भी यहाँ से लास्ट तक लेक्चर में जो भी सम्स में दिखा रहा हूँ, वो सम्स के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जैसे ही करते जाओगे, वही प्रैक्टिस का पोर्शन ही मुझे आज आप होमवर्क में भेजेंगे। समझ में आ गया? तो आज का होमवर्क मैं वीडियो के लास्ट में नहीं दे रहा हूँ, बट वीडियो की बिगिनिंग से शुरू हो के लास्ट तक में इंडिविजुअल बेस के ऊपर आपको होमवर्क सेंड कर रहा हूँ। तो आपको पूरा वीडियो देखना है आज, और जैसे ही आप पूरा वीडियो देखेंगे यू हैव टू वर्क ऑन इनटू द योर होमवर्क। अदरवाइज जिसने भी वीडियो पूरा नहीं देखा उसको कुछ नहीं पता चलेगा कि which things is included in our today's homework. So without failing, you start from the very first points from the practice question number 5. You can also open simultaneously your supplementary book. Okay, so let us move on it. First one is considered here that this consider the supplementary book page number 8 SB 8 के practice question 5.1 को हम consider कर रहे हैं पहले. So in a test plus 3 marks are given for every correct answer and minus 1 mark is given for every incorrect answer. We are discussing here practice question 5.1 that is available on your supplementary book page number 8. Okay, so in a test plus 3 marks are given for the every correct answer as well as minus 1 mark is given for every incorrect answer. मतलब इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 है और करेक्ट के लिए +3 है. So Sona attempted all the question and got 10 correct answer, but her total score was only +20. So फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर डिड शी गेट? कितने उसने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं. एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वर गिवन इन द टेस्ट? कितने क्वेश्चंस उसने परफॉर्म किए हैं टेस्ट में. दो चीज हमें यहाँ पे फाइंड करनी. तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है. हमें क्या करना है कि विच थिंग्स इज गिवन, +3 marks are given for one correct answer and -1 mark is given for one incorrect answer. ये दोनों चीज आपको याद रखनी है क्योंकि that is given into the question. दूसरी चीज, सोना got 100 correct answers and a score of 20. Why? Because of उसका बताया गया है यहाँ पे कि 10 करेक्ट आंसर है, बट हर टोटल स्कोर वॉज कितना था? ओनली +20 मार्क्स. तो दोनों चीज हमने मेंशन कर दी क्योंकि क्या चीज बताई गई है वो पहले हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में मेंशन करते. तो पहला गिवन पार्ट हो गया. अब हमें क्या करना है? आस्क्ड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स. हमें नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स फाइंड करने हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी फाइंड करने हैं. मतलब दो चीज हमें यहाँ पे पूछी गई है इस क्वेश्चन में से, जो दो चीज हम यहाँ से फाइंड करेंगे. So let us move on it. Operations. Which operations we have to include here? Subtraction करना पड़ेगा, division भी करना पड़ेगा और addition भी कर सकते हैं. Okay? तो why we are using that operation, subtraction, division and addition? So that's why we have to given that reason. We use multiplication to find the number of marks Sona obtained for the correct answer. We subtract this value from Sona's total score to find the marks Sona obtained for incorrect answer. मतलब जितने इनकरेक्ट है उसमें से वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. पहले कितने उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसलिए हमें उसका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. फिर बाद में हम डिवीजन भी कर सकते. वी डिवाइड दिस बाय द मार्क्स फॉर वन इनकरेक्ट आंसर टू गेट द टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर. तो ये सब चीज करने के लिए हमें
सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा, डिवीजन भी करना पड़ेगा, एंड फाइनली वी गॉट द एडिशन ऑल्सो. ओके, सो लेट अस मूव ऑन इट. सो वी हैव टू यूजिंग हियर मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर. कितने क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए थे? 10 करेक्ट आंसर. तो 10 इंटू हर करेक्ट के कितने मार्क्स थे? +3, यानी 10 इंटू 3 कितना होता है? 30. मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर कितने हैं? सपोज यहाँ पे उसके स्कोर कितना था? 20. अब 20 में से इनकरेक्ट आंसर इसके कितने हैं? -30. अब -30 उसमें से हम निकालेंगे तो क्या बचेगा? -10. So first question is that how many incorrect answer did she get? The number of incorrect answer is -10. को -1 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर एक इनकरेक्ट आंसर का -1 से हम डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या बचेगा? 10 इनकरेक्ट आंसर. अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट कितने हैं? पहले 10 हमें बताया गया, 10 करेक्ट आंसर, एंड वी हैव टू यूजिंग 10, सो दैट्स व्हाई वी गॉट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट, दैट इज 20. तो ये जो 4 मैंने प्रोसीजर की है उसमें मल्टीप्लिकेशन भी हुआ, सब्ट्रैक्शन भी हुआ, और एडिशन भी हुआ, और डिवीजन भी हुआ. जैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो साना 1/10 seconds in round 1. नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन 5.2. अब जो मैंने पहला क्वेश्चन अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वो क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में करना है. 5.1 क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिखना है. समझ में आ रहा है ना? विदाउट क्वेश्चन राइटिंग यू कांट बी एबल टू राइट द आंसर. आप लिख नहीं सकते. ये प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में तभी आपको कंप्लीट हो सकती है कि आप उसका क्वेश्चन पहले लिखें और बाद में उसका आंसर लिखें. समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखने से आधा क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है. एक बार भी हम उसको रीड कर ले तो 60% वो क्वेश्चन समझ में आ जाता है. सिर्फ हमारे कैलकुलेशंस के ऊपर 40% ही बचता है. मतलब समझो कि एक बार लिख देने से 50% क्वेश्चन समझ में आ जाता है, तो हम क्यों ना लिखें? तो ऑलवेज यू हैव टू राइट द क्वेश्चन and then after you have to start the answer. Is it okay? So 5.2 यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है. सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है 5.1 जैसा. So you can also pause your video and you have to write each and everything from 5.2. Okay? ये 5.2 यहाँ भी कंटिन्यू होता है और इट इज कंटिन्यूड अप टू दिस क्वेश्चंस. एंड यहाँ तक 2 पेज में 2 स्लाइड्स में इंडिविजुअली वो कंप्लीट होता है. तो दोनों स्लाइड्स आपको 5.2 में कवर करनी है क्वेश्चन के बाद. ओके, नाउ 5.3 क्वेश्चन नंबर 5.3 इन सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 8 SB 8 की मैं बात कर रहा हूँ. 5.1 एंड 5.2 दोनों क्वेश्चंस होमवर्क में करने ही है. अब हम आ रहे हैं 5.3 की ओर. 5.3 की ओर हम चल रहे, तो इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे ही दिखाया गया है कि स्वाति took 2 different online quizzes to practice for her math test. The table shows the points lost for each wrong answer in each quiz and the total points lost in each quiz. In which quiz did she have more wrong answer? अभी यहाँ पे एक टेबल दिया गया है आपको. उस टेबल में 4 फील्ड है. चैप्टर है, पॉइंट्स लॉस्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर है, टोटल पॉइंट्स लॉस्ट है, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू टोटल पॉइंट्स लॉस्ट डिवाइड बाय पॉइंट लॉस्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर. ऐसे आपको पूरा टेबल दिया गया. जैसे ही आपको टेबल दिया गया वैसे ही एग्जैक्टली आपको इस क्वेश्चंस आपके बुक में भी परफॉर्म कर लेना है. अब क्या करेंगे कि चैप्टर 1 एंड 3 जिसमें -4 -7 2 रॉन्ग आंसर के पॉइंट्स जितने लॉस किए हैं वो चैप्टर 1 में -4 है और चैप्टर 3 में कितने? -7. टोटल पॉइंट लॉस कितने हुए? -44 एंड -56. सो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर -44 डिवाइड बाय -4 हम करेंगे तो 11 उसके नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर हो गए, और -56 को -7 से डिवाइड किया तो 8 रॉन्ग आंसर हो गए. तो स्वाति गॉट मोर क्वेश्चंस रॉन्ग इन द टेस्ट ऑफ चैप्टर 1 या 3. अब बता सकते हैं आंसर के ऊपर से किस चैप्टर में ज्यादा उसके रॉन्ग हुए. ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 1, क्योंकि उसमें मिले उसको
11। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन 5.3 भी आप अपनी बुक में लिख के वही होमवर्क में सेंड करना है। आज का होमवर्क हो गया 5.1, 5.2 एंड 5.3। ऑल दिस आर अवेलेबल इन आवर वीडियो लेक्चर। ओके, तो आपको कई बार ढूंढने जाना जरूरी नहीं है। You can also directly use this video, pause this video, and you have to write in your notebook. Is it clear? So let us move on to the next points. So let us move on to the another points that is covered with the independence practice question number 6. अभी क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 का 6.1 अभी यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। मैंने पहले आपको दिखाया वो 5.1, 5.2 एंड 5.3 यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 बताया था। अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.1 अवेलेबल ऑन योर SB10 पेज नंबर SB10 के ऊपर आपको कंसिडर किया है। आपको सिर्फ और कुछ करना नहीं है, यहाँ पे जैसे ही आपकी बुक में दिया गया है वैसे ही पूरा ये चार्ट यहाँ पे आंसर के फॉर्म में लिखा हुआ है। बस सिर्फ आपको ऐसा ही करना है। 10 यानी लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर आप देखो तो 10 दिख रहा है आपको। 10 की एरो है वो राइट साइड की तरफ दिख रहा है और उसमें प्लस इंडिकेट किया, और प्लस कितना है 5। तो 10 में हम एडिशन करेंगे 5 का तो हो जाएगा हमारा आंसर 50। जहां आपका एरो चल रहा है वहां पे आपको जो भी नंबर्स के ऑपरेशन दिए हैं और जो नंबर दिए वो ऑपरेशन आपको करते जाना है। मतलब 15 के बाद आप नीचे डाउन पे आए, मल्टीप्लाई विथ क्या दिया आपको 20, तो 15 इंटू 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 300 आएगा। अब 300 आपका फाइनल आंसर है, तो 300 के बाद लेफ्ट की साइड में मूव हो रहा है और इसमें आपको एडिशन करना है 13, तो 300 में 13 ऐड करेंगे तो 313 हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रोसीजर हो गया पूरा। अब 313 से आगे कुछ नहीं, बट 300 में से दो चीज और भी है, एक राइट की तरफ मूव होता है और एक बॉटम की तरफ मूव होता है। यदि ये राइट की तरफ मूव हो रहा है तो उसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 900 हो जाएगा। 300 को आप -6 से डिवाइड करेंगे तो -15 हो जाएगा। ऐसे आपको ये पूरा चार्ट कंप्लीट करना है। समझ में आ गया? तो SB10 में 6.1 वो भी आज आपको कवर करना है। तो आज के कुल कितने क्वेश्चंस हो गए? एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन के 5 के 5.1, 5.2, 5.3 that is given into the earlier in this video. Now we are discussed here this practice question number 6, among them 6.1. Okay, so let us move. So this practice question 6.1 yani total you have to work on today's homework, that is 4 questions, 3 word problem and this fourth one that is practice question number 6। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर से आपको ये भी परफॉर्म करना है। समझ में आ गया? तो विदाउट फेलिंग आज आपको जो भी होमवर्क दे रहे वो अच्छी तरह से आप होमवर्क करके सेंड करो। ओके, I hope so that you understood properly what I am telling in during this lecture, and I hope so that if you having any kind of the doubt you can directly ask me. Thank you very much with being with us and watching this video. Continue session we will discuss into the next. Thank you very much.